Hello students, dear students, we have completed our third unit, that is metals and non-metals. Today I am going to explain the problems, or you can say the exercise which is given in this unit. So through this exercise we can recall all the chapter again. So we will revise this chapter through the NCERT exercise. Okay, so let's see. Your first question, which is given multiple choice question, in which you have asked you have given the 4 options. Okay, in these 4 options you have asked which one show the displacement reaction. इसमें से displacement reaction कौन show करेगा? First pair you have given NaCl solution with copper. Okay, NaCl solution की अगर copper से reaction कराएं तो वो displacement show करता है कि नहीं करता है. Second, which is given magnesium chloride with aluminium. Magnesium chloride को अगर aluminium के साथ reaction कराते हैं तो ये displacement show करेगा कि नहीं करेगा. Next is given ferrous sulfate with silver. Silver के साथ अगर आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है. और ये है सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर के साथ. तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमें पढ़ना है, व्हाट वी हैव स्टडीड इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन earlier in this chapter, we know in the second unit also we have done the displacement reaction. Displacement reaction क्या होती है? A type of reaction in which more reactive metal displace the less reactive metal from the given compound. ये हमारे पास compound दिया हुआ है, इसमें से अगर इससे ज़्यादा reactive कोई metal हुआ तो इसको क्या कर देगा? Remove कर देगा. तो इस process को हम क्या बोलते हैं? Displacement reaction बोलते हैं. ये डिस्प्लेस कैसे करेगा, हमें कैसे पता रहेगा विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड लेस? फॉर दैट वी रिकॉल द रिएक्टिविटी सीरीज विच वी हैव लर्नड ऑलरेडी इन द रिएक्टिविटी सीरीज. व्हाट वी हैव गिवन, सी इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की हम बात करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? एक्चुअली लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल. तो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है. लिथियम है वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इसमें बुक में पोटेशियम से दी हुई है तो हम पोटेशियम से याद करते हैं. तो ये क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. गॉट इट? So you have given all the metals of reactivity series. You know the mnemonic to learn them. So here is given these all the metals. Now see first NaCl and copper. Okay. अब NaCl में कौन सा देखना है? React the metal. Metal कौन है? सोडियम. Here is given copper. Which one is more reactive here? See, in the reactivity series, sodium is first, and second in number at the number, and copper is C in the last. Okay, that means reactivity series क्या हो रही है? It decrease in downward direction. नीचे की तरफ क्या हो रही है? घट रही है. तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम कहाँ है? ऊपर है. तो इसका मतलब सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस द सोडियम फ्रॉम द NaCl. That means it will not show any displacement reaction. See the another magnesium chloride and aluminium. See, magnesium Mg given here, and after Mg aluminium is given in the reactivity series. That means aluminium also less reactive than the magnesium. That means it will also not show any displacement. Another one, iron sulfate and silver. Okay, iron sulfate. See, here is given iron, and where is silver? The bottom. Silver का नीचे है. That means iron is more reactive than silver. So silver is not able to displace the iron from the iron sulfate. So this will not also show the displacement reaction. Now see the last, silver nitrate with copper. Where is silver? Silver is in the last, and before the silver mercury is also given there, and before mercury copper is given there. Means copper at the top in the reactivity series than the silver. So we can say copper is more reactive than the silver, so it will displace it, and the reaction occur like that. हम reaction भी देख लेते हैं. AgNO3, okay, plus copper, what it will make? CuNO3 whole twice plus Ag. Ag को क्या करते हैं? इसमें डिस्प्लेस कर दिया, हमारे पास क्या बन गया? कॉपर का नाइट्रेट. तो ये रिएक्शन क्या कहलाए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. सो इन दीज
option which one is show the displacement reaction? Option D show the displacement reaction. Got it? I hope you understand the topic displacement by this lesson. Got it? इससे हमारा क्या होता है, टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या आपने चैप्टर जो पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाता है एक बार. तो जितना मैक्सिमम आज इस वीडियो में होता है वो हम करेंगे, बाकी कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग. फ्राइंग पैन जो है जिसमें खाना पकाते हैं अपन, है ना, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए उसकी कोटिंग किससे करना ज़्यादा बेटर रहेगा. सो यू हैव गिवन द ऑप्शंस: अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ द अबव. अब देखो, जो अपना कुकिंग पैन है, जो यूटेंसिल है जिसके ऊपर अपने को कोटिंग करनी है, उसमें ग्रीस लगा के तो खाना नहीं पका सकते. पेंट है उसको भी अपन गर्म करेंगे तो पेंट क्या हो जाती है, हट जाती है. तो अपन क्या करें, उसमें गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, मीन्स अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक. और जिंक की कोटिंग करना मतलब क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन. सो द राइट ऑप्शन इज दिस, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक. नेक्स्ट, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ पे कुछ तुम्हें क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं. एलिमेंट यू हैव गिवन कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड अनदर वन इज अ आयरन. ओके, ये कह रहा है दे रिएक्ट विद द एनवायरमेंट और यू कैन से विद द ऑक्सीजन एंड मेक ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड यू कैन से इट इज सोल्यूबल इन वाटर. तो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनाता है. तो इसमें ये अंडरस्टूड है द एलिमेंट लाइकली टू बी. तो इसमें हमें पता है कि सीधा सीधा है, इसकी ऑक्सीजन से कराते हैं, इसकी ऑक्सीजन से कराते हैं, इसकी ऑक्सीजन से कराते हैं, इसकी. तो ये आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, ये सिलिका का ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड बन जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और ये कैल्शियम का ऑक्साइड. और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं अपन, क्विक लाइम. और क्विक लाइम हमें पता है डिजोल्व इन वाटर. जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या बना लेता है, वाटर सोल्यूबल बेस बना लेता है, ये वाटर में सोल्यूबल है. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कैल्शियम इज द राइट ऑप्शन. बाकी सारे क्या है इसमें, बाकी सब जो दिए हुए हैं वो नॉन मेटल टू नॉन मेटल दे रखे हैं. ठीक है. नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फूड कैन्स आर कोटेड विद जिंक, नॉट विद द जिंक. फूड कैन्स हैं उनको जिंक की बजाय टिन से कोट किया जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक है, रिएक्टिविटी सीरीज में अपन देखते हैं Zn कहाँ पे है, लेड से सॉरी टिन से पहले है, Sn से पहले है. मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन. सो अगर हम टिन की कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर तो ये कम रिएक्टिविटी शो करेगा किसी भी फूड मटेरियल के साथ में और वो ज़्यादा बेनिफिशियल, वो जो भी अपन ने फूड अंदर रखा है तो उसकी रिएक्शन इसके साथ इतनी जल्दी या नहीं हो पाएगी. जिंक की अगर करेंगे तो वो जल्दी रिएक्शन कर लेता है. तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द टिन, दैट्स व्हाई वी कोट द टिन ऑन द फूड कैन्स. So zinc is more reactive than tin. The right option is C here. Okay. You have given a hammer, a battery, a bulb, a wire, a switch. How would you use them to distinguish between sample of metals and non-metals? मेटल्स और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करना है. आपके पास हैमर है, हैमर से हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पीट के देख सकते हैं. इफ़ दे आर ब्रिटल, दे आर convert into small pieces, that means to non-metal. And if they are not convert into small pieces and they may be beaten into sheets and they will be drawn into wire, then they are known as the metals. है ना. बैटरी से if electricity pass through the that by taking the material and the piece of metal and non metal जो भी लेते हैं अपन बैटरी से कनेक्ट करते हैं. तो ये अपने लोअर क्लासेस में भी देखा है, मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. बल्ब हम उसी में इलेक्ट्रिक पाथ बना के अपन देखेंगे, स्विच और वायर उसी में काम आएगा. तो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना देंगे. इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, पाथ बनाएंगे. इसमें अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, ये अपन ने सेल बैटरी, यहाँ पे अपन क्या बना देते हैं, इसका स्विच बना देते हैं. यहाँ पे अपन क्या बना रहे हैं, यहाँ बल्ब बना दिया और इस पाथ को क्या कर देते हैं अपन, यहाँ पे ये वायर लेते हैं. एक बार अपन क्या लेते हैं, मेटल वायर लेते हैं. मेटल वायर लेंगे तो बल्ब विल ग्लो और अगर हम नॉन मेटल लेते हैं तो इट विल नॉट ग्लो. सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यू कैन डू इट इजीली. ऐसे यूजफुल
नेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इससे क्या है, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बाय दीज experiments or by these materials. Now what are amphoteric oxides? Give two example of amphoteric oxide which we have done in second chapter also. You do all know zinc oxide and aluminium oxide. They all are both are known as the amphoteric oxide because they both show the behavior like acid and base. They react with the acid also and base also. ये acid और base दोनों के साथ reaction करते हैं. That's why they show both the behavior acidic and as well as basic. So they are known as the amphoteric oxide. You have written their definition and example in your notes also. Got it? So you can get from there. Name two metals which will displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not. So you can get it from the reactivity series. जो reactivity series में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर कौन से अपने सारे ही हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. Okay, and after the hydrogen you have given copper, mercury, silver, gold, platinum. Okay, so these are given after this. So we can take before and after the hydrogen. तो जो हाइड्रोजन के बाद वाले अगर हम लेंगे they will not show the displacement, and if we have taken before the hydrogen from the reactivity series they will show the displacement. Got it? Now in the electrolytic refining of metal M, what would you take as a anode and cathode and electrolyte? अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई मेटल दिया हुआ है M, उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड में क्या लेते हैं, कैथोड में क्या लेते हैं. वी हैव स्टडीड थ्रू द डायग्राम आल्सो. In electrolytic refining what we have taken anode and cathode. Anode connected with the cathode connected with negative and the this is connected with positive and this is known as anode. Anode is a impure material है ना, impure metal जिसका अपन क्या कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं ना. तो impure metal हम लेते हैं एज ए एनोड और यहाँ पे अपन लेंगे प्योर मेटल जिसकी रिफाइनिंग करनी है, प्योर मेटल एज ए कैथोड. और जिसकी रिफाइनिंग करनी है सेम मेटल विच वी आर गोइंग टू टेक है ना, मेटल एन जो भी अपन ने लिया है उसी का क्या लेते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट. जैसा अपन ने एग्जांपल देखा था कॉपर में है ना, तो इम्प्योर के लिए अपन ने क्या लिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 एसिडिफाइड, उसमें एसिड की कुछ अमाउंट ले ली थी अपन ने, इम्प्योर फॉर्म में यहाँ पे लगा दिया था. और यहाँ कैथोड में अपन ने क्या लिया था, प्योर कॉपर की रोड लगा दी थी और फिर इसमें से जो पार्टिकल आए ये इस पे आके चिपक गए प्लस में क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ पे आके अपन ने इसको कलेक्ट कर लिया था. ये कहलाई थी अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. सो वी कैन अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट यू हैव गिवन प्रत्यूष took sulfur powder on a stapler and heated. प्रत्यूष के पास एक सल्फर पाउडर है and this is given through the diagram also in the book. You can understood from the book easily. तो उसके पास सल्फर पाउडर दिया हुआ है ना, उसको वो गर्म कर रहा है. कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाई इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन अ फिगर. फिगर में दे रखा है कि टेस्ट ट्यूब इसमें ऊपर करी और उसको क्या कर रहा है, वो गर्म कर रहा है. What will be the action on ड्राई लिटमस पेपर. अब ड्राई लिटमस पेपर पे इसका जो एक्शन है वो कैसा होगा, तो सल्फर पाउडर दिया हुआ है यहाँ पे, उसको गर्म करेंगे. दैट मीन्स इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो इट कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड. और ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है. हमें पता है मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड दे आर ऑलवेज बिकम एसिडिक इन नेचर. और ये एसिडिक नेचर का है और हमें पता है एसिड में क्या होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड है ना. तो वो क्या करता है, रेड में टर्न कर देगा. तो इसमें कह रहा है ड्राई लिटमस पेपर अगर अपन लेते हैं इसमें, तो ड्राई लिटमस पेपर
पास में ले जाएंगे तो उसका ड्राई लिटमस पेपर, सॉरी, इफ़ देयर इज़ नो मॉइस्चर, अगर उसमें मॉइस्चर नहीं है तो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज कलर विल चेंज इन द मॉइस्ट ओनली। वो अगर मॉइस्चर रहता है तो ही कलर चेंज कर पाता है, ड्राई फॉर्म में एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। एंड अनदर यू हैव मॉइस्ट लिटमस पेपर है तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल आर देयर, सो इट विल कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड रेड बिकम रेड इन इट। राइट, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ये रिएक्शन होगी सल्फर के ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें बन जाता है। सो वेरी इजी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट in next video we are going to start the unit 5th. okay, before 4th that is very easy to, you can understand all the elements through that unit, so that is very important for you. Step 2 ways to prevent the rusting of iron को rust से prevent करने के लिए the simplest method, if you have asked then greasing, oiling, painting, galvanization, electrolysis, these are the method by which we can prevent the rust, iron from the rust. What type of oxide are formed when non-metal combined with oxygen? अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है, यू हैव टेकन द एग्जांपल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, सल्फर इज अ नॉन मेटल, रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दे मेक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर, वो हमेशा एसिडिक होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, गिव रीजन, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक द ज्वेलरी। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर हैं वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट दीज ऑल मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, so they do not react with the particles of the nature easily, so the sign will maintained for a long period of time, so that, and they are very malleable and ductile, so that they are used to make the jewelry. इनकी शाइनिंग जाती नहीं है लंबे टाइम तक, ना ये रिएक्शन करते हैं, तो ज्वेलरी बनाने के लिए यानी कि इन पे रस्टिंग का या कोरोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इस वजह से हम इनको यूज में लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी about this. These are the very reactive metal. When they are exposed into the air, they react with the air and moisture of the environment, and they catch fire. Their reaction becomes so vigorous that they will catch the fire, and because to prevent that type of accident, we should we put them into the kerosene oil. Okay, तो to prevent that accidental case, इस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किसमें डाल के रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, येट इट इज यूज टू मेक द यूटेंसिल फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए फिर भी काम में लिया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का हमने देखा था, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड मेक द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड द लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम यूटेंसिल प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। ये एक ऐसा मेटल है जिसमें ऑक्साइड की लेयर आने के बाद उसका आगे कोरोजन नहीं होता है, आगे उसकी रिएक्शन नहीं होती, तो उस पर इसका असर नहीं होता। बिकॉज ऑफ दैट ये रस्टिंग से अपने आप ही प्रिवेंट हो जाती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, इसलिए कुकिंग यूटेंसिल्स है वो एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये अपन ने देखा था एक्सट्रैक्शन मेथड में, जब अपन किसी भी सल्फाइड या कार्बोनेट और हमारे पास होते हैं, जैसे सिनेबाट था हमारे पास, HGS है ना, या अपने पास कार्बोनेट और था, इनको इसी फॉर्म में हम क्या नहीं कर सकते, रिफाइनिंग इनको नहीं निकाल, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते मेटल को, तो क्या करते हैं, इससे पहले इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑक्साइड्स में। पहले ही ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, और ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद इनका क्या किया जाता है, इनका रिडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इनका रिडक्शन करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या है, कार्बोनेट और सल्फाइड और की फॉर्म में हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे सल्फाइड और कार्बोनेट को उनसे अलग करना क्या कहें, उनसे डायरेक्ट मेटल एक्सट्रैक्ट करना इतना इजी नहीं है, इसलिए पहले उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इस प्रोसेस में लाना पड़ता है। ठीक है, ओके, so you must have seen tarnished copper vessel being cleaned with lemon and tamarind juice। तुमने देखा होगा
तांबे के जो बर्तन होते हैं या कॉपर वेसल्स होते हैं उन पर ग्रीनिश लेयर आ जाती है। और मैंने बताया भी था तुम्हें ग्रीनिश लेयर किसकी वजह से आती थी, कॉपर कार्बोनेट और ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ग्रीनिश लेयर आ जाती है। इसको हटाने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, लेमन या अपन टेमेराइंड पल्प जो होता है टेमेराइंड, जिसमें क्या रहता है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड लेमन में कौन सा रहता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो क्या रहता है, जब हम इसकी ग्रीनिश लेयर हटाते हैं तो एसिड इनके साथ रिएक्शन कर लेगा, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्शन करके इसके कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड को क्या कर देंगे, हटा देंगे और कॉपर सिट्रेट और कॉपर टाइट्रेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, उनकी जो लेयर है ग्रीनिश वो हट जाएगी एंड दे बिकम शाइन नाउ, वो चमकने लग जाएंगे, तो उनको साफ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर केमिकल प्रॉपर्टी। यू ऑल हैव डन दैट केमिकल प्रॉपर्टी एंड आई विल प्रोवाइड द आंसर एंड रिटर्न टू यू एंड यू हैव रिटर्न इन द नोट्स ऑल्सो कि मेटल और नॉन मेटल में केमिकली क्या डिफरेंस है। वो एसिडिक होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है मेटल, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर मेटल की अपन बात करते हैं, दे मेक देयर ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल मेक देयर द oxide which is acidic in nature. So these are 4-5 points are given there which we have done already. Okay, next you have given a man went door to door posing as a goldsmith. एक आदमी है वो डोर टू डोर जाता है, अपने आप को क्या बताता है कि मैं एक गोल्ड स्मिथ सुनार हूँ, और वो क्या करता है, लोगों को बोलता है कि तुम्हारी पुरानी जो ज्वेलरी है जो जिसकी शाइनिंग चली गई है उसको मैं क्लीन कर दूंगा, साफ़ कर दूंगा। और क्या है, जब लोग देते हैं या मतलब जिनको नहीं पता रहता है, जब लोग उसको दे देते हैं ज्वेलरी और उसका वेट जब बाद में करके देखते हैं तो वो वेट जो होता है उसका बहुत कम मिलता है उनको। तो ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, ऐसा क्या करते हैं वो, और उनको ये देना चाहिए कि पहली बात तो ये ज्वेलर्स, ये जो सुनार बन के आते हैं या साफ़ करने वाले आते हैं, इनको कभी भी बिठाना नहीं चाहिए, इनको कभी भी इस तरह की ज्वेलरी उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बना के रखते हैं जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा होगा, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया वो सॉल्यूशन बनाते हैं जो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का 1/3 रेशियो होता है ना। तो ये इस रेशियो में एक्वारेजिया सॉल्यूशन बना लेते हैं और इसमें ये लेस रिएक्टिव होते हैं गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, लेकिन जब एक्वारेजिया में डिप कर दिए जाते हैं तो उसकी अपर लेयर वो इसमें डिजोल्व हो जाती है एंड बाय डिजोल्विंग इट जो अपर लेयर जो होती है, जो थोड़ी सी डल हो चुकी होती है, वो सॉल्यूशन में चली जाती है और अंदर से वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका वेट क्या हो जाता है कम, क्योंकि वो धुल जाते हैं, कुछ अमाउंट है वो सॉल्यूशन में चली जाती है। आफ्टर दैट दे विल गेट फ्रॉम दैट सॉल्यूशन। तो वो इस तरह का करते हैं, ये फ्रॉड होता है, इस तरह का वो लोग करते हैं और ऐसे निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द केमिकल दैट इज एक्वारेजिया। तो ये क्वेश्चन तुम्हें घुमा के रख के पूछा जा सकता है कि वो क्या करते हैं, किस में वॉश करते हैं, ऐसा क्यों होता है और उसकी लेयर कैसे हट जाती है, व्हाई दे बिकम शाइन, वो कैसे चमकते हट जाते हैं, बिकॉज ऑफ द they dip into the aquaregia solution. Got it? Which you have written also. Next, give reason why copper is used to make hot water tanks and not steel and alloy of iron. हॉट वाटर टैंक है वो कॉपर के बनाए जाते हैं, स्टील के नहीं बनाए जाते। कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील के नहीं बनाए जाते। इसकी क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टील क्या है,